गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का संदेश विश्व में फैलाने के लिए वह प्रतिबद्ध है। ऐसे डॉक्टर साहब आज शहीद श्रद्धांजलि सम्मान समारोह में हमें अतिथि विशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। ये बारडोली का सौभाग्य है। बाबू भाई पटेल डॉक्टर साहब का सम्मान कर रहे हैं। हम सभी डॉक्टर साहब के कृतज्ञ हैं। हम आप सभी को मैं अपने स्थान पर खड़ा होने के लिए विनंती करता हूं और धर्म पीठिका पर विराजमान डॉक्टर प्रणव भाई पंड्या का बारडोली प्रदेश की जनता हार्दिक स्वागत करती है। હવે આપણે મૂળ વિષય પર આવીએ। આજનો જે પ્રસંગ છે મિશન કેદારનાથનો, એને વિશે થોડી વાત કરી લઉં। મિશન કેદારનાથ 16 જૂન અને 17 જૂને જે નેચરલ કેલામિટી આવી, કુદરતી આપત્તિ આવી, આખો દેશ આવી ગયો। શું કરવું શું ન કરવું તે વિચારતો રહ્યો। સરકારથી માનીને એનજીઓ બધા જ જણા વિચારવા લાગ્યા અને 5000 વર્ષ પછી ભગવાને કદાચ આ ભયાનક આપણા તીર્થ ક્ષેત્રમાં મૂકી હોય તો કેદારનાથમાં કેદાર બાબાએ અને કૃષ્ણએ દ્વારકામાં 5000 વર્ષ પહેલા દ્વારકા ડુબારેલી અને 5000 વર્ષ પછી અત્યારે કેદારની ભૂમિને લાવી કોણે? ભગવાને જ લાવી છે। કારણ આપણે છે, આપણા નેગેટિવ થોટ્સ, આપણા નેગેટિવ કર્મ, આપણા કુદરતની સંપત્તિને સાચવવાની ભાવના નથી। એટલે એ કારણ મહાકારણમાં ન પડતા આનાથી આપણે બધા ત્યાં ઘણા હજારો યાત્રીઓ એમાં ભોગ બન્યા, મરણશરણ થયા, ત્યાંના લોકો પણ દુઃખી થયા। તો અહીં પણ અમે વિચાર્યું કે આપણે કંઈ કરવું જોઈએ। તો નક્કી કર્યું કે ભાઈ મિશન કેદારનાથ 999 વર્ષ કામ કરવું। કોની સાથે કરવું? તો કે એ સમય દરમિયાન આપણે ન્યૂઝમાં વાંચતા હતા કે અભિરામ પરિવારમાં હનુમાન ગુફામાં 15 દિવસ સુધી અભિરામ બાબાએ 1500 થી 3000 માણસોને રાખીને એની સેવા કરી, એનું રક્ષણ કર્યું। એ બહુ મોટી વાત હતી। અને એક સમયે ગાયત્રી પરિવારમાં પેરેલલ હરદ્વાર શાંતિ કુંજમાં રોજના 5 થી 10000 માણસોની સેવા થાય, મદદ થાય, ખોરાક પહોંચાડાય અને કેમ્પ સાઇટે એ લોકોને હેલિકોપ્ટર દ્વારા એ ફૂડ પેકેટ પહોંચાડતા હતા। એ માટે એમને વંદન અને અભિનંદન। એ જે કર્મયોગીઓ એમાં હતા એમને અને એમના મા બાપને વંદન કરીએ કે આવા શુભ કામો કરવાની એમને પ્રેરણા મળી। અને એમના જે ઈષ્ટદેવ છે, ઈષ્ટ વ્યક્તિ છે એવા આદરણીય રામ ગુરુદેવ શર્માજીને પણ આપણે વંદન કરીએ કે એમને આવા ડેડિકેટેડ વર્કર એણે સમાજમાં, રાષ્ટ્રમાં એમણે ઊભા કર્યા છે। બહુ મોટી વાત છે। આજે આપણે 5 વ્યક્તિની ઘરમાં આપણો દીકરો કે દીકરી કહેલું કરતા નથી, ભાઈ કહેલું કરતો નથી, આપણા માટે બજારમાંથી શાકભાજી લાવતો નથી અને આ 5 કરોડ ગાયત્રી પરિવારના ડેડિકેટેડ વર્કર આ કામમાં લાગી જાય એ બહુ મોટી ઘટના છે। આ કુદરતમાં, કળિયુગમાં આ ચમત્કાર છે। અને અમે રાકેશભાઈ સાથે હું જ્યારે 18મી સપ્ટેમ્બર હરિદ્વાર ગયો અને 19મીએ અમે પૂજ્ય પ્રણવભાઈ સાથે વાત કરી, પછી 20મી અમે બાજુના ગામોમાં જ્યાં ગંગા નદી એ કેટલાય ગામોને તારાજ કરી દીધા હતા। અમે જે સમયે જોયું તો બધા ખેતરો 2-3 ફૂટથી એ ભરાયેલા હતા અને શેરડીનો પાક ખલાસ થઈ ગયો હતો અને ઘરમાં 2-2 ફૂટ ચકુ ભરાયેલું હતું। એવા ગામમાં આઈ રિપીટ, એવા ગંડા ગોબડા ગામમાં આ પીરા વસ્ત્રધારી ગાયત્ર પરિવારના સભ્યોને, ભણેલા માણસોને પાવડે ટગારે કાઢવું અને મરને ઉચકતા મેં સાક્ષી વાળે જોયા છે। આ મોટી વાત છે। આપણે આપણા ઘરનો કચરો વાળતા નથી, આપણે આપણા ઘરનો કચરો બાજુમાં મૂકી દઈએ છીએ। જ્યારે હા મોટી સેવા છે, આ પ્રેરણા લેવા જેવી વાત છે। તો આ બે પરિવાર સાથે અમે નક્કી કર્યું, ગાયત્રી પરિવાર અને અભિરામ પરિવાર સાથે આ મિશન કેદારનાથ ચાલુ કરવું। બાબા અભિરામ બાબાને જ્યારે કેદારનાથ ટેકરી પર હતા મેં પર્સનલી ફોન કર્યો કે બાબા અમે કંઈ કરવા માંગીએ છીએ। તો કહ્યું ગુરુવાર 9મી જુલાઈએ આવું છું, ત્યાં આપણે વાત કરીએ। 9મી જુલાઈએ મેં 12 જણા મળવા ગયા। તેમણે કીધું કે ત્યાં તો ખૂબ કરવા જેવું છે ને ઘણો સમય લાગશે, 5 થી 10 વર્ષ નીકળી જશે આને પાછું રિહેબિલિટેશન અને રિસ્ટોરેશન કરવા માટે। પણ તમે એક કામ કરો કે લીંબ ગોંડી ગામ છે ગુપ્ત કાશીની બાજુમાં, એમાં 31 બ્રાહ્મણ પરિવારની વિધવાઓ થઈ છે ને દત્તક લઈ લો।
એમનું એજ્યુકેશન, એમનું ફૂડ, એમના કપડાં, એમનું શિક્ષણ, એમની રોજગારી, એમનું કન્યાદાન. ઇમિડિયેટલી અમે તરત જ કબૂલ કર્યું કે લીમગોંડી ગામને અમે દત્તક લીધું. अब शहीदों का सम्मान, जो यह समग्र कार्यक्रम का हृदय है, वो हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं. मैं आप सभी से नम्र विनती करता हूँ कि जब शहीदों के परिवार सम्मान ग्रहण कर रहे हैं तब आप ताली मत बजाइए, ताली नहीं बजाइए. आप अगर चाहे तो वंदे मातरम बोल सकते हैं, लेकिन आप ताली नहीं बजाइए. हम सब वंदे मातरम का नारा लगाएंगे. आप सभी से विनती, वंदे वंदे वंदे. श्री जलाराम प्रार्थना समाज की ओर से भारतीबेन समीर भाई पटेल वह सम्मान करेंगे सतीश कुमार जी के परिवार से उपस्थित ट्रस्ट की ओर से दूसरा चेक जय. औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है. औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है. औरों के हित जो जीता है. किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल. जो त्रसित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल. जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल. जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल. वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है. उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है. औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है. औरों के हित जो जीता है. हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की कर्मभूमि बारडोली में परम पूज्य गुरुदेव और परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज शहीद दिवस के दिन मौजूद हमारे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं और थिंक टैंक ग्रुप बारडोली के आदरणीय श्री खुशहाल भाई और उनके साथी, सभी साथी, हमारे थिंक टैंक ग्रुप से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों, इस परिसर की देखरेख करने वाले सभी परिजनों, हमारी डॉक्टर प्रज्ञाबेन और विभिन्न दानी समूह जो दान देने के लिए यहाँ पर आए. कई बार लोग दान देते हैं और उसके बाद कहते हैं आप लोग बंटवा दीजिएगा, हमें टाइम नहीं है. तो उन्होंने टाइम निकाला, 2-3 घंटे बैठे, ये बहुत बड़ी बात है. हमारे बीच में बैठे हुए हमारे शहीद सैनिकों के परिवार के संबंध, मेरे पास जब वो आए तो सबकी आंखों में आंसू थे. आपने उन्हें देखा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, तो मैंने उनकी आंखों को देखा.
और मैंने देखा है कि किस तरह से उन्हें उस पल अपना वो संबंधी याद आ गया जो उत्तराखंड की पहाड़ों में शहीद हुआ था। उन्हें अपना पिता याद आ गया, उन्हें अपना पति याद आ गया, उन्हें अपना भाई याद आ गया, अपना बेटा याद आ गया, उन्हें अपना पति याद आ गया। मित्रों, ऐसे सब यहाँ बैठे हैं। ये लोग 2 लाख रुपए के लिए नहीं आए हैं, ये लोग सम्मान के लिए आए हैं। सम्मान आपसे पाने के लिए, प्यार पाने के लिए, क्योंकि आदमी पैसे के बिना तो जी सकता है और सम्मान और प्यार के बिना नहीं जी सकता। इसलिए हम सब ने जो यहाँ हमको सम्मान दिया, प्यार दिया और ये कहा हम आपके साथ हैं। हमने तो शांति कुंज का भाव भरा आमंत्रण दिया है सबको कि तुम्हारा घर है, तुम कभी भी आओ, हमारे यहाँ आओ और हमारे यहाँ रहो। किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो सभी के सभी आमंत्रित हैं। मित्रों, आप सभी को संबोधित करते हुए अपनी बात आरंभ कर रहा हूँ। आज 23 मार्च है। आज के दिन 3 निर्दोष व्यक्तियों को अचानक फांसी पे चढ़ा दिया गया। कोई तिथि डिक्लेयर नहीं थी, पर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन 3 को चढ़ा दिया गया था फांसी पर। और जब भगत सिंह ने ये कहा, भगत सिंह से ये कहा गया कि तुम मत करो ये काम, तुम असेंबली में बम मत फोड़ो, इसका परिणाम होगा तुम्हें फांसी लग जाएगी। मतलब मुझे फांसी लग जाएगी तो धमाका होगा, धमाका होगा, देश की आज़ादी जल्दी आएगी। इस देश की आज़ादी को जल्दी लाने के लिए मैं चाहता हूँ कि मुझे फांसी लगे। ऐसे नौजवान आज कहाँ हैं? ऐसे नवयुवक कहाँ हैं? ऐसे नवयुवक हैं ही नहीं। आज का नवयुवक पैकेज चाहता है, नौकरी चाहता है, पैसा चाहता है, खूबसूरत बीवी चाहता है। मरने का मादा जिनमें होता है वो जवान ये हैं जिनके रिश्तेदार यहाँ बैठे हुए हैं। मरने का मादा जिनके मन में हो वो ये हैं जो यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में। मित्रों, जब मैंने उत्तराखंड की ट्रेजेडी हुई, उत्तराखंड में 16 जून को शाम को जब पता चला पूरा विवरण, तो उसके बाद हम लोगों ने तुरंत रिलीफ पैकेट्स बनवाना चालू किया और हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर 1.5 लाख रिलीफ पैकेट बनवा दिए। और 1.5 लाख रिलीफ पैकेट बनवा करके जब हमने भिजवाए, तो अगर ये लोग ना होते तो हमारे रिलीफ पैकेट वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक उनको जाना चाहिए था। इन्हीं जवानों ने, ITBP के जवानों ने, NDRA के जवानों ने और आर्मी के जवानों ने हमारे अपने हेलीकॉप्टरों से हमारे पैकेट्स को पहुँचाया। और उन्हीं का एक हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण ये आज हमारे बीच में बैठे। मित्रों, इन सब की कुर्बानी को बारंबार प्रणाम, शत शत प्रणाम। उन्हीं 3 शहीदों की तरह से जैसे भगत सिंह को दिया, हमने सुखदेव को दिया और राजगुरु को दिया, ऐसा ही प्रणाम इन सबको हमको देना चाहिए। इन लोगों ने हमारे लिए काम किया, हमारे लिए जिए, ये हमारे लिए तुरंत अनेक बार उन्होंने अपने शरीर को, जब शरीर जा रहा होगा तब न जाने क्या सोचा होगा, पर ये जब जाते हैं आर्मी में, ये जब जाते हैं ITBP में, ये जब एयरफोर्स में जाते हैं, तो इनके मन में एक ही जज्बा होता है, वो जज्बा गजब का होता है कि हमें कुछ कर दिखाना है देश के लिए, चाहे इसमें जान चली जाए कोई बात नहीं, हमें कुछ कर दिखाना है। मित्रों, वो देखने को था। जब मैं इनसे मिलने गया था एयरपोर्ट पर, जब मिल के आया मैंने कहा आप हमारे पैकेट्स पहुँचा देंगे क्या? मैंने क्यों नहीं, कुछ भी नहीं, हम वहाँ से लेके आएंगे लोगों को और अगली बार जब जाएंगे तो खाली जाएंगे, आपके पैकेट्स पहुँचा देंगे। मित्रों, अगले दिन से ही हमारे पैकेट्स करीब 20-25 दिन 30 दिन तक चल सके इतनी सामग्री हमने उसमें रख के भेजी, जिसमें तेल भी था, जिसमें माचिस भी थी, जिसमें राशन भी था 1 महीने के लायक, जिसमें तुरंत के लिए काम के लिए सामान की चीज़ें थी, मोमबत्ती थी, ये सारी जो काम की चीज़ें थी, फर्स्ट एड का सामान था, वो सारा सामान हमने भिजवाया। मित्रों, अब मैं कह रहा हूँ, इस बात को सरकार किसी और रूप में न ले। सरकार ने अपनी ओर से ऊपर से लेबल लगा दिया उन डब्बों के ऊपर, उत्तराखंड शासन की ओर से। तो लोगों ने उन डब्बों को तो नहीं देखा, पर उन डब्बों के अंदर जो पैकेट थे उनमें लिखा हुआ था गायत्री परिवार की ओर से। लोगों के पास जो पैकेट पहुँचे उसमें कहीं उत्तराखंड शासन नहीं लिखा था, उसमें लिखा था ये गायत्री परिवार को। तो हर व्यक्ति के पास जो भी गया, चाहे वो मोदी जी गए हों और चाहे वो हमारे यहाँ के शिवराज सिंह चौहान गए हों, हर व्यक्ति को एक ही बात बताई सबने, गायत्री परिवार नहीं होता तो हम जिंदा नहीं रहते। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये जवान नहीं होते, अगर ये उड़ाने वाले हेलीकॉप्टर के सैनिक ना होते, तो इन हेलीकॉप्टर के अभाव में हम नहीं पहुँच सकते। सारी सड़कें टूटी हुई थी, अभी भी टूटी हुई हैं। साल भर में हालत क्या हो गई इतना आप समझ नहीं सकते।
यहाँ बैठ के नहीं समझ सकते वास्तव में स्थिति क्या है। डॉक्टर खुशहाल जानते हैं क्योंकि कई बार आके देख चुके हैं वहाँ वास्तव मिशन केदारनाथ, मिशन बद्रीनाथ जिस तरह से हम लोगों ने बनाया है बैठ कर के यहाँ पर, ऐसा सरकार को बनाना चाहिए था। बार बार कहते हैं कि हम चालू कर देंगे, तीर्थ यात्रा चालू कर देंगे, तो कैसे चालू करेंगे? नहीं चालू कर सकते आप, रास्ते ही नहीं। एक दिन, दो दिन लग जाता था 100 किलोमीटर दूर क्रॉस करने में, और आपके पास दूर तक सुविधा नहीं है, कोई सामग्री नहीं है। फिर आपको जब चलना पड़ेगा 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पैदल, तब कैसे चलेंगे आप? आपके पास दम भी नहीं है। आज का आदमी इतना ज़्यादा निर्बल हो गया है, कमज़ोर हो गया है, और कुछ जीवन शैली इतनी ज़्यादा हमारी आराम पसंद हो गई है, हम चल भी नहीं सकते, तो कैसे जाएंगे? तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति काम आते हैं जो इस तरह की कद काठी के बने होते हैं, और उन लोगों की मदद लेकर के हमने सामान पहुँचाया, हमने मकान बनाए। लगभग 20 गाँवों में हमने मकान बनाया अभी तक, और लगभग ऐसा संकल्प है कि 200 गाँवों में हम अपने मकान बनाएंगे, और इन मकानों के माध्यम से उन लोगों को रहने के लिए 24 घंटे बर्फीली हवाएं आती थी, उनसे बचने के लिए माध्यम मिल गया। आज खुशहाल जी ने हमें दिया है थिंक टैंक ग्रुप की तरफ से, उस पूरे का उपयोग हम उसी में करेंगे। अभी तक हम लोग 10 करोड़ रुपये लगा चुके हैं, और भी ज़्यादा लगाने का मन है, और मैं समझता हूँ कि जितना भी कुछ हो सके, जो भी हो सके, इस चमड़ी को चीर करके भी अगर देना पड़े तो उसको भी देने के लिए हमको सबको तैयार होना चाहिए। ऐसा भी जज्बा हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। आदरणीय डॉक्टर पंड्या साहब जी, हमारा गायत्री परिवार, हमारे खुशहाल भाई और थिंक टैंक ग्रुप, मेरा पूरा जगत का जो आया है शहीद परिवार, उनको भी मैं नमन करती हूँ। सबको मैं आवकार देती हूँ, पर साथ साथ मेरा भावपूर्ण आभार व्यक्त करती हूँ। आश्रम की ये ऐतिहासिक भूमि पर शहीद दिन के उपलक्ष्य में थिंक टैंक ग्रुप द्वारा आयोजित यह मिलन समापन की ओर जा रहा है। भारत के शहीद जवानों को आदरपूर्ण भावांजलि समर्पित करके यह सात्विक अवसर पर परम आदरणीय प्रज्ञा पुरुष डॉक्टर प्रणव भाई पंड्या हमारे बीच पधारे हैं। प्रेरणात्मक उद्बोधन से समारंभ को विशिष्टता प्रदान की है। यह अवसर पर हम आपके अनुग्रह पूर्ण उपस्थिति से धन्य हो गए हैं। मिशन केदारनाथ 99 से हमें सहयोग एवं प्रदर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए अखिल गायत्री परिवार के हम सब बहुत बहुत आभारी है, कृतज्ञ भी है। उत्तराखंड दैवीय आपत्ति के दौरान बचाव कार्य में शहीद हुए हमारे भारतीय सेना के अमर जवानों के परिवार, उनके सदस्य आज यहाँ आए हैं, इसलिए हम बहुत बहुत कृतज्ञता पेश करते हैं और उनके हम ऋणी हैं। स्वराज आश्रम बारडोली परिवार ने उनका यह परिसर इस कार्यक्रम करने के लिए दिया, इसलिए एवं यह समारोह का संदेश जन समुदाय को पहुंचाने वाला पत्रकार परिवार यहाँ उपस्थित रहा, इसलिए हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। सर्व सहयोगी दाता परिवार और सर्व संस्थाओं के हम ऋणी हैं। उनके सहयोग से हम ये सब कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य करते रहेंगे। अंग्रेजी में एक वाक्य है, वी गेट बाय इन आवर लाइफ विथ हेल्प ऑफ आवर फ्रेंड्स। और वेद का भी सुर यही ही तो है, सहवीर्यम करवावहै। सबके परिश्रम एवं समर्पण से ही यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर सहभागी हुए, इसलिए आपका अंतःकरण पूर्वक
मैं आभार व्यक्त करती हूँ। समग्र कार्यक्रम सुचारू रूप से परिपूर्ण करने के लिए आद्य शक्ति परमात्मा स्वरूप को प्रणाम करके समारंभ का समापन करते हैं। इसलिए आइए सर्जित होने के लिए राष्ट्रगीत गा के विसर्जित होने का संकल्प करें। नमस्कार, धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए मैं आप सभी को अपनी जगह पे खड़ा होने के लिए आह्वान करता हूँ। राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अंत में हम शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ कीजिए। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोलिए भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनी माता जी की, भारत माता की। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। जहाँ आज हम रुके हैं ये बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। बारडोली का वो स्थान जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, उनकी कर्म भूमि है। करमसद में उनका जन्म हुआ था आणंद जिले में, परंतु यहाँ आकर के उन्होंने किसानों के सत्याग्रह के साथ अपने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। और ऐसा कहा जाता है कि उसी सत्याग्रह आंदोलन ने उनको राष्ट्र पुरुष बना दिया, राष्ट्र का एक बहुत लीडिंग लीडर बना दिया। और मैं समझता हूँ कि ऐसे पुण्य वातावरण में, पुण्य पावन वातावरण में बैठना, यहाँ रहना, एक दिन रुकना, यहाँ विश्राम करना या भोजन करना, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज एक कार्यक्रम था शहीदों की स्मृति में, जो शहीद हुए थे उत्तराखंड की ट्रेजेडी में। और उत्तराखंड में जो
राहत कार्य के लिए जो पुलिस के, जो आईटीबीपी के और एनडीआरए के और इसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स के जो हमारे जवान गए थे, उनमें से करीब 20 परिवारों को इसका नुकसान हुआ। 20 परिजन जो थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश में इन बिटवीन देहरादून एंड अगस्त मुनि, इसके बीच में कहीं उनका क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर। तो उसमें सभी लोग मारे गए इंक्लूडिंग द पायलट। तो वो उन सबके परिजन आए हुए थे। किसी की पत्नी थी, किसी के बच्चे थे, किसी की माँ थी, किसी के पिता थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। सभी आए हुए थे केरल से लेके और असम तक और जम्मू कश्मीर से लेकर के और मध्य प्रदेश और गुजरात तक। बारडोली का यहाँ का भी एक जवान था जो आईटीबीपी में था। तो इन सबको 2-2 लाख रुपए के चेक इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, थिंक टैंक ग्रुप बारडोली के द्वारा दिए गए और उसको हमने अपने गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद के साथ उनको प्रदान किया, भेंट दी, शॉल दी और उनको ये आश्वासन दिया कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी उनको तो हम उनके साथ हैं और हमेशा उनका साथ देते रहेंगे। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और खुशहाल भाई जो हैं, डॉक्टर खुशहाल जो थिंक टैंक ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने हमें भी चेक दिया है। राहत कार्य जो हम चला रहे हैं, लगभग 10 करोड़ की लागत से हम लोग राहत कार्य वहाँ किए हैं, गढ़वाल में और कुमायूं में, दोनों ही क्षेत्रों में हम लोगों ने किए हैं और भी आगे करते रहेंगे। अभी तो आने वाले 5-6 वर्षों तक इसकी ज़रूरत पड़ेगी और राहतें, आपदाएं आती रहती हैं। तो आपदा में राहत कार्य जो है वो सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाओं को करना चाहिए। तो सामाजिक संस्थाओं की तरफ से डॉक्टर खुशहाल जी और आध्यात्मिक संस्था की तरफ से हम दोनों ने हाथ मिलाया है और हम दोनों मिलकर के काम करेंगे इस क्षेत्र में। आगे जहाँ कहीं भी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी, जैसे अभी नक्सलाइट का हुआ है बस्तर में, उसमें उन्होंने हाथ बढ़ाया है डॉक्टर खुशहाल ने, तो हम भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और हम पैसा कलेक्ट करेंगे और हम उनके डिपेंडेंट्स को देंगे। जो राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं, जो राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। ये एक प्रकार से राष्ट्र देवता की आराधना ही है जो हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। ये कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा, बहुत बढ़िया रहा और मैं समझता हूँ कि आज 23 मार्च होने के नाते भी, शहीद दिवस होने के नाते भी 3 शहीदों के बलिदान दिवस, भगत सिंह, सुखदेव और हमारा जो तीनों जो शहीद थे, इन तीनों की याद को भी ताज़ा कर गया कि ये इन शहीदों ने राष्ट्र के लिए उस समय दिया। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह तीनों ने उस समय दिया जब भारत दास्ता से त्रसित था। और आज जब भारत आज़ाद है तब ऐसी त्रासदियाँ हो रही हैं जैसी उत्तराखंड की ट्रेजेडी हुई थी। तो उस ट्रेजेडी को उबारने के लिए आज उनको कुछ दिया है और आगे भी ऐसे कुछ होते रहेंगे कुछ हादसे, तो उन हादसों से उबारने के लिए हम लोग कुछ करते रहेंगे, साथ साथ मिलकर